بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف کارروائیوں کے مثبت اثرات۔ اسٹاک ایکسچینج کا 60,000 کا ہندسہ عبور کرنا تاریخی کامیابی قرار۔ نگراں وزیر اعظم نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کا عندیہ دے دیا۔ انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ امید ہے آئندہ کامیاب کمپنیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تحت پاکستان کی بہترین کمپنیوں کو ایوارڈز دینے کی تقریب۔ نگراں وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کو مزید بہتری کی امید دلا دی۔ تقریب سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 60,000 کا ہندسہ عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کے مثبت اثرات۔ انوار الحق کاکڑ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ تاجر برادری جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مزید کامیابی سمیٹے۔ تاجر برادری ملکی معیشت کو سدھارنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ بڑی کاروباری کمپنیاں فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریب کے موقع پر نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر اسٹاک مارکیٹ کے تحت بہترین کمپنیوں کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ سٹی کونسل کا ایک اور اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ پی پی اور جماعت اسلامی کارکنان کی دھکم پیل، اپوزیشن کا پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج، نعرے بازی بھی کی گئی۔ جماعت اسلامی کے کارکنان کا شور شرابہ سٹی کونسل مچھلی بازار کا منظر پیش کرتا رہا۔ نعرے بازی کے درمیان 12 قراردادیں منظور ہو گئیں۔ نعروں کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ مزید تفصیلات جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ یہ ہے کراچی کی خدمت کے دعوے داروں کا ایوان، جہاں کراچی کے مسائل پر کم اور الزامات پر ہوتی ہے نعرے بازی زیادہ۔ اجلاس شروع ہوا تو مختلف واقعات پر جان ہتھیلی میں رکھ کر شہریوں کی جان بچانے والے فائر فائٹرز اور ریسکیو 1122 کے عملے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فلسطین کے حق میں ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ کل کرچی سینٹر کے واقعے پہ جس طریقے سے فائر بریگیڈ کی ٹیم نے اور ہماری ریسکیو 1122 کی ٹیم نے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بحیثیت شہری کے لیے ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ایوان مچھلی بازار بنا رہا، چندہ چور، ڈھکن دو اور کراچی کو پانی دو کے شدید نعرے بازی۔ گلستان جوہر انڈر بائی پاس شہدائے فلسطین کے نام سے منسوب کرنے سمیت 11 قراردادیں کثرت رائے سے منظور ہو گئیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے سٹی کونسل کے دوسرے اجلاس کا انجام پہلے اجلاس جیسا ہوا، جو پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ مین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، سٹی کونسل کا ماحول کیسے بہتر کیا جائے؟ میئر کراچی کی جماعت اسلامی کو مذاکرات کی دعوت۔ مرتضیٰ وہاب کا یہ کہنا تھا کہ میئر کی کرسی پر چڑھنے کی کوشش کی گئی، جماعت اسلامی کا رویہ سب نے دیکھ لیا۔ جماعت اسلامی نے جواب میں شرائط رکھ دی۔ تاہم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ کے ایم سی بلڈنگ میں کونسل کا دوسرا اجلاس شور شرابے اور نعرے بازی کی نظر۔ میئر کراچی نے کونسل کو مچھلی بازار بنتا دیکھ اجلاس ملتوی کیا تو دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر دی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کو اب بھی کہتا ہوں کہ شہر کی بہتری کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اجلاس میں جماعت اسلامی کے منتخب لوگوں نے حیران کن بدتمیزی کی۔ خدارہ ایشوز کے اوپر آئیں، اس شہر کو جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے وہ کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ فیصلے پیپلز پارٹی کی مینڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی فیصلے کرے گی، ہماری قیادت فیصلہ کرے گی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر سیف الدین نے کہا کہ قراردادیں جعلی طریقے سے پیش کی گئیں اور ایجنڈا عوام دشمن تھا۔ آج بھی جو قراردادیں انہوں نے منظور کروانے کی کوشش کی ہیں وہ ٹوٹل جعل سازی ہے۔ آج ایوان کے اندر اپوزیشن کے ممبرز زیادہ تھے اور ان کے ممبرز کم تھے، اور جس وقت انہوں نے قراردادیں پیش کی نہ کوئی سن رہا تھا نہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ قراردادیں منظور ہو گئی۔ اگر انہوں نے ان قراردادوں کو منظور ظاہر کیا تو ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے اجلاس میں ہونے والی بدنظمی آخر کس کی غلطی ہے؟ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر الزامات تو خوب لگائے مگر سنجیدگی کا اظہار اب تک نہ ہو سکا۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 1۔ ناظرین، سٹی 21 کی خبر پر ایکشن، یو سی ملازمین کو تنخواہوں کی جزوی ادائیگی۔
यूसी मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें मिल गईं। तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 1500 है। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी लोकल गवर्नमेंट कमीशन की इजाज़त से मशरूत है। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। यूसी मुलाजमीन की सुन ली गई, सिटी 21 की पुकार, जाग गई सरकार, तनख्वाहों की अदायगी शुरू। नई हल्का बंदियों को जवाज बनाकर महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध ने 3 माह से यूनियन कमेटियों के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी बंद कर रखी थी। इस मसले को सिटी 21 ने मुतअद्दिद बार उजागर किया, जिसके बाद यूसी मुलाजमीन को जुज़वी तौर पर 2 माह की तनख्वाहों की अदायगी शुरू कर दी गई। सिंध भर के 5000 यूसी मुलाजमीन में से कराची के मुलाजमीन की तादाद 1968 है। मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें अदा कर दी गईं, जिनकी तादाद 400 बताई जाती है। जिनको 400 बंदों को मिल चुकी हैं वो न्यू यूसी के लोग हैं, उनको वहाँ से हो गई, चेयरमैन वगैरह ने वहाँ के सेक्रेटरी उन्होंने करवा दी गई है। और जो अभी जो 1500 मुलाजमीन की तनख्वाहें रह चुकी हैं, अभी उसके लिए यहाँ पर मुलाजमीन आते हैं बाकायदा। यहाँ पर तनख्वाहों से महरूम कराची की यूसीज के मुलाजमीन की तादाद 1500 के लगभग है, जिनको तनख्वाहों की अदायगी लोकल गवर्नमेंट कमीशन की इजाज़त से मशरूत है। इस सिलसिले में रीजनल डायरेक्टोरेट कराची ने डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 13 अक्टूबर को खत लिखा, जिसका जवाब मिलते ही बाकी मानदा यूसी मुलाजमीन को भी तनख्वाहें जारी होने का इम्कान है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अर्शी मॉल में ना हंगामी अखराज का रास्ता और ना आग बुझाने का कोई सामान मौजूद। अर्शी मॉल में आतिशबाजी की वजूहात सामने आ गई हैं। SPCA की टीम का मुतासरा इमारत का दौरा। कमेटी सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने मुतासरा इमारत का मुआयना करके काबिल रिहाइश करार दे दिया। आयशा मंजिल अर्शी शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी, मुतालिका इदारे मुतहरिक हो गए। महकमा फायर ब्रिगेड, पुलिस और SBCA अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे। चीफ फायर ऑफिसर ने मुतासरा इमारत का दौरा किया। इश्तियाक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आग 4थे फ्लोर तक पहुंचने के बाद हमें इतला दी गई। इमारत में हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था, कोई फायर फाइटिंग का सामान भी मौजूद नहीं था। देखिए, हमारी पूरी टेक्निकल कमेटी है जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के KDA के मेंबरान हैं, कुछ हमारे भी मेंबर्स हैं। तो पूरा तफसीली इसका मुआयना कर लिया है, तो बज़ाहिर ये तजुर्बे की बुनियाद पे कह सकते हैं स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं है, लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्ट हम लोग 1-2 घंटे में सबमिट कर देंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी की टीम ने भी चलने वाली इमारत का मुआयना किया। काम ने बताया कि आतिशबाजी से इमारत को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट जारी की जाएगी। SSP सेंटर भी अर्शी शॉपिंग मॉल पहुंचे। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि रेस्क्यू टीम तमाम मुतासरा कमरों का जायजा लेगी। SBCA की टीम की जानिब से क्लियरेंस से कबल किसी को इमारत में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। SSP सेंट्रल ने वाजे किया कि सिलेंडर के जरिए आग लगने की इतला की तस्दीक नहीं हो सकी। फैक्ट एंड फाइटिंग कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की सिफारिशात पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपेरेंटली यही लगता है कि किसी शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन इसको अभी तक हम हतमी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे, इसका मेज़लाइन फ्लोर है, उसमें भी हमें पता चलेगा। कोई ऐसी चीज़, कोई और ट्रेस मिलता है जिससे हो सकता है कि तफ्तीश का रुख चेंज हो जाए। हुकूमत की जानिब से डेफिनेटली एक कमेटी बनाई जाएगी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बुनियाद पर फिर आगे लीगल एक्शन भी होगा। अर्शी शॉपिंग मॉल के मुतासरा दुकानदारों ने आतिशबाजी से ज्यादा नुकसान की वजह फायर ब्रिगेड को करार दिया। बोले, इब्तिदा में आने वाली फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए पानी मौजूद नहीं था। उन्होंने आतिशबाजी से होने वाली जानी नुकसान का जिम्मेदार मार्केट कमेटी को ठहराया है। बाकी इंतहाई नाकिस कारकर्दगी, हम जो भी कहें, फायर ब्रिगेड वाले जब आए हैं पहले वाले, उनके पास पानी का इंतजाम ही नहीं था। जब बाद वाले आए हैं तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा लेट आए हैं, तब तक आग मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग को अपने लपेट में ले चुकी थी। शॉपिंग मॉल के मुतासरा दुकानदारों ने तमाम T21 ने मास्टर प्लान से नक्शे की ड्राइंग हासिल कर ली। बिल्डिंग कंट्रोल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क को मौसूल हो गई। SPCA की टेक्निकल टीम का मुतासरा इमारत का दौरा। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत आग लगने से ना किसी तरफ झुकी थी, ना इसमें कोई क्रैक नजर आया। कंस्ट्रक्शन को कमेटी ने दरमियाने दर्जे का करार दिया। बिल्डिंग कंट्रोल ने रिपोर्ट DC सेंट्रल को अरसाल कर दी और बाकी का मुकदमा दर्ज कर लिया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का मुतासरीन को करीबी शेल्टर मुंतकिल करने का ऐलान। मकबूल बाकर का आतिशबाजी से मुतासरा इमारतों का दौरा। रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात की। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दिया। धमकाने वालों के खिलाफ भी मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए।
अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशदगी से कीमती जानों के जिया का मामला। निगरां वजीर आला सिंध भी जाए हादसा पहुंचे। मकबूल बाकर ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आला ने इंतजामिया को इमारत का सर्वे करने की हिदायत कर दी। साफ कह दिया कि वाक़ये के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिहायशी इमारत के मुतासरीन को करीबी शेल्टर में मुंतकिल करके सहूलियात दी जाएंगी। अभी भी डीसी साहब ने बताया कि इन्होंने तमाम जो मुतासरीन हैं उनको ऑफर किया है, टेम्परेरी शेल्टर भी ऑफर किया है, फूड भी ऑफर किया है और इंशाल्लाह जितनी भी उनको सहूलत फराहम की जा सकेगी कर देंगे। कोई कमी कोताही होगी तो उसको पूरा करेंगे। इस वक्त भी सब लोगों को इस वक्त गुजारिश है कि वो इस फैसिलिटी को कहाँ पे है, आपने कहाँ किया सर? हम टेम्परेरी स्कूल के यहाँ सर टाउन में से टाउन चेयरमैन डिक्लेयर। कितनी दूर है यहाँ से? सर यहाँ से करीब है, करीब में कोई शेल्टर है, वहाँ पे इनके लिए जितनी भी फौरी तौर पर सहूलत फराहम की जा सकती है वो की जा रही है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर अर्शी शॉपिंग मॉल पर कायम MQM के इमदादी कैंप पर भी गए और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की, जहां फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी भी मौजूद थे। MQM ने मुतासिरीन के मसाइल से वजीर आला को आगाह किया, जिस पर मकबूल बाकर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। MQM आतिशदगी के मुतासरीन के हक के लिए मैदान में आ गई। खालिद मकबूल की वज़ीर आला से मुतासरीन को इंसाफ दिलवाने की अपील। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का अर्शी मंजिल का दौरा। रहनुमा MQM ने कहा कि मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए इक़दामात उठाएंगे। तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान अर्शी शॉपिंग मॉल आतिशदगी के मुतासरीन के हक में मैदान में आ गई। निगरां वजीर आला सिंध से मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की अपील कर दी गई। अर्शी शॉपिंग मॉल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखीर से पहुंचने का इल्जाम लगा दिया। बोले आग बुझाने में ताखीर से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने वजीर आला सिंध से तहकीकात कराने की अपील कर दी। ये जिनके फ्लैट गिरेंगे उन्होंने ना आग लगाई है ना उनकी गलती से लगी है, तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत सब चीज़ें देर से पहुँची हैं। इनकी कंपनसेशन का आज ऐलान करें, वरना कल हमें कोई और ऐलान करना पड़ेगा। वजीर आला सिंध आए और बताएं कि वो इंसाफ कैसे दिलाएंगे। वजीर आला सिंध, निगरां वजीर आला सिंध आए और खुल के बताएं कि उनके पास कितने इख्तियारात हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कह रहा था कि गुज़िश्ता रोज आतिशदगी के वाक़ये में 5 कीमती जानें गईं। लोग अपनी कीमती इमलाक से महरूम हुए। ये आतिशदगी का जो वाक़या है अर्शी अपार्टमेंट और अर्शी मार्केट में, इससे 5 कीमती जानें ज़ाया हुई। अभी तो RJ मॉल की दुकानें बंद हैं, वो दुकानें नहीं खुली, वो तबाहाल हैं, बर्बाद हैं, उनको कैसे आबाद करेंगे? ये सवालात सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत से भी हैं। शहर में जंगल का कानून नाफिज होने का दावा करते हुए MQM रहनुमाओं का कहना था कि कराची वो वाहिद शहर है जिसमें रिश्वत खोरी आम है। MQM हमेशा मजलूमों के साथ खड़ी रही है और आइंदा भी खड़ी रहेगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आतिशदगी के वाक़ये पर बेहिसी की इंतहा। आयशा मंजिल की मुतासा फैमिली का घर से सामान चोरी होने का दावा। मिसेस फरहाना खलील कहती हैं, अफरा तफरी में हम घर खुला छोड़कर नीचे भाग गए थे। उन्होंने कहा कि फ्लैट आग से बच गया मगर चोरों से न बच सका। 4 मोबाइल फ़ोन गायब हैं, चारों बंद मिल रहे हैं। दीगर फ्लैट से भी मोबाइल फ़ोन गायब होने की शिकायत आ रही हैं। मिसेस फरहाना खलील है और हमें 10 मिनट का टाइम दिया गया था अपना सामान लेने के लिए। हम ऊपर गए हैं सामान लेने के लिए। सामान तो हमारा हैगा, लेकिन हमारे घर में जो मोबाइल थे वो सारे गायब है। 4 मोबाइल थे, चारों मोबाइल नहीं मिले। हर जगह देख लिए, कहीं मोबाइल ने बेल मार्केट में देख लिया, बेल नहीं जा रही है। चारों मोबाइल कोई उठा के ले गया, ये नहीं पता कौन लेके गया। हाँ, जब सब सेफ था, वह अभी इमरजेंसी में तो हमने मोबाइल ढूंढे ना सबसे पहले, तो हमें मोबाइल नहीं मिले और बैग उठाए हमने। 10 मिनट का टाइम मिला था, उन्होंने बोला कि बस जल्द से जल्द भाई इसको हटाओ यहाँ से और जल्दी अपना सामान लो और बाहर जाओ। फ्लैट जला नहीं है लेकिन सामान चोरी हुआ है। 208 फ्लैट का नंबर है, उसके वजह से सामान चोरी। किसी और बंदों ने भी बोला कि क्या नाम है, हमारी चीज़ें मोबाइल ही गायब हुए, इतने सारा सामान हमारा ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। जब आग लगी थी तो जल्द से जल्द हम आगे से खाली करवा लिया था मकान। भाई जल्दी आप बाहर लोग आ जाओ, क्या तो ऊपर जाके हमारा सामान ही नहीं मिला। RJ मॉल केस में अहम पेशरफ्त। मफरूर बिल्डर आरिफ धोनी का बेटा गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन टीम ने एहसान धोनी को छापा मारकर गिरफ्तार किया। जी आपको बताएं कि RJ मॉल केस में अहम पेशरफ्त हो चुकी है। मफरूर बिल्डर आरिफ धोनी का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद इस पर तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये भी चार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की कामयाब कार्रवाई जो है वो देखने में आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरजे मॉल के जो मेन एक्यूज थे मफदूर मुल्जिम बिल्डर आरिफ धूनी, उनके बेटे को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात ये बताई जा रही है अजीज के घर में जो है वो रुपोशी काट रहा था, जहाँ पे ट्रैक करने के बाद जो है वो CTR निकाला गया, तमाम तर इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया और उसमें एहसान धूनी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये मेन आग लगने के आरजे मॉल के वाक़े के मेन मुल्जिम है, जिस पर जो है वो आरिफ धूनी के अभी तक मफरूर है और बेटे को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अहम पेशरफ तो ये केस में इससे कबल भी जो है 6 लोगों को जो है वो गिरफ्तार करके जो है कोर्ट का रिमांड हासिल किया गया है, लेकिन मेन एक्यूज जो है वो कानून के शिकंजे से बाहर था। लेकिन कहा गया है कि एक अहम कामयाबी हासिल हुई और अहम पेशरफ में जो है तो एहसान धूनी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मदद से जो है आरिफ धूनी तक घेरा तंग किया जाएगा और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बास जी। देगर खबरों में आपको बताएं कि मार्केटों के किरायों में 75% इजाफा मंजूर नहीं है। ताजरों ने कल KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। रहनुमा ताजिर अब्दुल्ला यूसुफ ज़ई बोले, ताजिर इजाफी किराया देने की सकत नहीं रखते, किरायों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। किरायों में इजाफा नामंजूर, KMC मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफ ज़ई ने कहा कि महंगाई के बाइस ताजिर इजाफी किराया नहीं दे सकते, किरायों में इजाफा वापस लिया जाए। हम मेयर साहब से मुतालबा करते हैं कि आप अपने फैसले जो है वापस लें और 150% इजाफा ये जालमाने इक़दाम है और बार बार सुनवाई नहीं दी इनको। अब्दुल्ला यूसुफ ज़ई का कहना था कि जुम्मे को KMC हेड ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अब हमने कल ये प्रोग्राम बनाया कि एहतजाजी तहरीक शुरू की और हेड ऑफिस के सामने KMC हेड ऑफिस के सामने कल 3 बजे मुजाहरा होगा। इसमें ताजिर तंजीमें और तमाम ताजिर KMC अलायंस मार्केट जो है वो इसमें भरपूर शिरकत करेगी। ताजरों का कहना है कि कानून के मुताबिक सालाना 10% इजाफा काबिल कबूल होगा। इसके अलावा इजाफी किराया लेने का फैसला वापस लिया जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़िम, मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने बड़ी खबर सुना दी। मुर्तज़ा सोलंकी का यह कहना था कि निगरान हुकूमत ने इंतखाबात नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध अहमद शाह का रोज़ाना एक वज़ीर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। तहा मलिक की रिपोर्ट। में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। मुर्तज़ा सोलंकी ने सिंध असम्बली इमारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंतखाबात के हवाले से अदालतों में जाता है तो जाए, अदालतें बर वक्त फैसला सुनाएंगी। एक मफरूज़ा ये है कि जी वो पिटीशंस होंगी और वो इतना ताख़ीरी होंगी। आपने साथ ही मेरे ख्याल में ये भी फ़र्ज़ कर लिया कि अदालत जो है वो इन पिटीशन को सुनते हुए इलेक्शन के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर जारी कर देंगी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने वाली। इस मुल्क के अंदर इंतखाबात कराने के लिए वाहिद आइनी इदारा जिसकी आइनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। किसी अदालत ने इलेक्शन नहीं कराने, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। सिंध के निगरान वज़ीर इत्तलाआत मोहम्मद अहमद शाह का कहना था कि रोज़ाना एक सूबाई वज़ीर के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ताकि निगरान हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सके। हम अपनी एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं पूरी कैबिनेट की, तो सारे मिनिस्टर्स को मैंने ख़त लिख दिए और हर दूसरे रोज़ एक वज़ीर को लेके बैठ के प्रेस मैं लेके आऊँगा और सारे सवालों का वो खुद जवाब देगा। ये रोज़ हो रहा है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने आने वाले इंतखाबात को मद्देनज़र सिक्योरिटी खदशात पर खुलकर बात की। बोले, हर इंतखाबात में सिक्योरिटी मसाइल होते हैं मगर अब आने वाले इंतखाबात के हवाले से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, कराची। कारोबारी हवाले से खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता हो गया, 283 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 285 रुपये पर बरकरार रहा। बरतानवी पाउंड 359 यूरो 306 रुपये पर बराजमान। अमाराती दिरहम 77 रुपये 80 पैसे और सऊदी रियाल 75 रुपये 80 पैसे पर आ गया। अनासिन शेयर्स की दिल खोल कर खरीदारी ने स्टॉक मार्केट में नई सतह कायम कर दी। 100 इंडेक्स 64,000 की 1718 पर बंद हुआ। म्यूचुअल फंड्स की सरमायाकारी ने मार्केट को 65,000 की सतह तक पहुंचा दिया। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक
मार्केट में सरमायाकारों की नॉन स्टॉप सरमायाकारी जारी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के साथ साथ म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी ने मार्केट को 65,000 की सतह तक पहुंचा दिया। माहिरीन का कहना है मार्केट बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। सरमायाकार दिल खोलकर शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। शेयर्स की लेन देन उरूज पर है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हैं, खासतौर पे हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक्टिव हुए हैं मार्केट के अंदर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है। लास्ट मंथ की बात करें तो $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फॉरेन की जानिब से आई है और ये सिलसिला हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स के इजाफे से 64,718 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 37 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 31 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट में 401 कंपनियों की शेयर्स में लेन देन हुआ। 215 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 167 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21। और एक और अच्छी खबर शामिल करें। टोयोटा ने अपनी नई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी मुतारिफ करवा दी है। टोयोटा ने मुकामी सतह पर तैयार की गई गाड़ी को कोरोला क्रॉस का नाम दिया है। पाकिस्तान में सार्फिन की जानिब से बेहद पसंद किए जाने वाली कंपनी टोयोटा ने अपनी नई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मुतारिफ करवा दी है, जो जल्द ही फरोख्त के लिए पेश की जाएगी। ताहम अभी तक इसकी कीमत से मुतालिक कोई तफसील सामने नहीं आ सकी है। टोयोटा ने अपनी गाड़ी का नाम कोरोला क्रॉस रखा है। मुकामी सतह पर तैयार की जाने वाली गाड़ी की रनुमाई की तकरीब कराची में हुई, जिसमें हुकूमती, कारोबारी और टोयोटा के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इंडस मोटर कंपनी के CEO मोहम्मद अली असगर ने अपने तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन पर शुक्रिया अदा किया और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जापान की गहरी दोस्ती पर भी रोशनी डाली। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट को कैसे माहौल दोस्त बनाया जाए, NED यूनिवर्सिटी में आलमी माहिरीन ने सर जोड़ लिए। शोबा माहौलियाती इंजीनियरिंग के तहत हयातियाती ईंधन को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की अहमियत के हवाले से एक रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद हुआ। माहिरीन ने हयातियाती ईंधन को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की बेहतरी का ज़ामिन करार दिया। आयशा अफरीन की रिपोर्ट। को माहौल दोस्त बनाने का अज़्म आलमी माहिरीन का बड़ा हदफ। जामे NED में बैठक लगा ली। बायोमीथेन फ्यूल की अहमियत को उजागर करने के लिए NED यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद सदारत मुइनुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने की। शोबे माहौलियात के एसोसिएट प्रोफेसर महमूद अली का कहना था कि हयातियाती ईंधन को बुनियादी तौर पर ट्रांसपोर्ट के शोबे में इस्तेमाल किया जाता है। ये ईंधन ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने का बेहतरीन जरिया है। दुनिया भर में हयातियाती ईंधन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से था, जिसमें बायोफ्यूल्स के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था कि ये पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारा ज़राए मुबादला भी जो है उसकी बचत होगी और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल दोस्त जो है वो फ्यूल हैं। तो इनमें जो है बायोडीज़ल है, बायो एथानॉल है और बायो गैस है हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास बायोमीथेन है। ये फ्यूल्स वो हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमिनार में शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की और बायोमीथेन फ्यूल को बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मुतारिफ कराने पर जोर दिया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आयशा अफरीन, सिटी 21। मारूफ मुसव्विर शर्जील बलोच ने अपना सफ़रनामा तख़य्युल की ख्वाहिशात, आरजू, मौसमियाती बदलाव, कुदरती आफात और सैलाब के तसलसल को कैनवस की जीनत बना दिया। अलायंस फ्रांसिस में सजी नुमाइश में अदाकारा सानिया सईद ने भी खुसूसी शिरकत की और मुसव्विर के काम को सराहा। मज़ीद अहवाल जानते हैं राहिल बेग से। इस वक्त हमारे साथ मारूफ अदाकारा सानिया सईद मौजूद हैं, जो कि शर्जील बलोच के शाहकार फनपारों की नुमाइश में मौजूद हैं और जिन्हें देखने के लिए खुसूसी तौर पर आई हैं। सानिया, आप क्या कहेंगी, आज शर्जील बलोच का जो काम शोकेस किया गया है, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये अलायंस फ्रांसे में 7 और 8 दिसंबर को ये एग्ज़िबिशन है। अगर कल किसी के पास वक्त है ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इसका जो टाइटल है वो स्कैटर्ड टेयर्स है और शर्जील ने शहर के लैंडस्केप को और बारिश के कतरों को इस्तेमाल किया है अपने एक्सप्रेशन के लिए। और ये चूँकि वाटर कलर्स हैं, ये वाटर कलर पेंटिंग्स हैं, तो ये एक जो पेंटिंग से वाकिफ़ हैं बहुत मुश्किल मीडियम है और उसमें जिस तरह की डिमेंशंस वो क्रिएट कर पाए हैं वो बहुत
मेरे लिए बहुत बहुत इम्प्रेसिव हैं, इसलिए कि मैंने शर्जील को एज एन आर्टिस्ट ग्रो करते हुए देखा है। तो ये मेरे लिए बड़ी स्पेशल एग्जीबिशन थी और मैं ख़ास तौर पे आई इसे देखने के लिए। बिल्कुल जी। अच्छा, इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम्स जो ख़ास तौर पर नए आने वाले हैं इस फ़न में, फ़न मुसव्वरी में, उनके लिए कितने अहम और कितने एक बहुत बहुत अहम बात है, अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हैं और आप पेंटिंग एग्जीबिशंस नहीं देखते हैं तो that's half your learning. Watching other people's work, looking at other people's work, observing at other people's journeys and processes. So अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं और जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, जितनी ज़्यादा आप अटेंड, वैसे ही कितनी होती हैं, लेकिन जितनी होती हैं ज़रूर अटेंड कीजिए। बिल्कुल जी। ये जो काम है ना कि सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि जो इस फन में नए आने वाले हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। और इस तरह की आर्ट्स एग्जीबिशन जहां पर खूबसूरती में इजाफे का बायस है, वहीं पर शहर की रौनक में भी इजाफा करती है। इस तरह के सॉफ्ट प्रोग्राम जो हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का तासुर बेहतर करते हैं। जी। बुलेटिन के इख्तिताम